Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter aldehyde, ketone and carboxylic acid. So students, in this session we will discuss preparation methods of only ketones. In our last session we have discussed preparation methods of only aldehyde. ऐसे मेथड जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड बनता था. आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सिर्फ कीटोन बनेगा. सो लेट्स स्टार्ट. So student, preparation methods of ketones only. So first one we have from acyl chloride. So acyl chloride means what? So acyl chloride is RCOCl. RCOCl. Alkynyl chloride को हम क्या बोलते हैं? Acyl chloride. If you are right, methyl at the place of R. For example, CH3COCl. So, अगर हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, so this is acyl chloride, and at the place of R you are writing CH3. So it will be acetyl chloride. So both are same, acyl chloride and acetyl chloride. Clear? So students, एसाइल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है? कीटोन्स बनाना है. कैसे बनाएंगे? तो बच्चों आपको क्या करना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी है. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या? RMgX. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी है बच्चों आपको कैडमियम क्लोराइड से. सो फर्स्ट वी विल राइट RMgX. RMgX react with cadmium chloride. Now student, cadmium is Cd, chloride is Cl and Cl. So RMgX reacts with cadmium chloride. So what will we do? So replace MgXCl and we will find what we will find. Cadmium is here and both side there is R. तो बच्चों MgXCl बाहर निकल जाएगा. MgXCl बाहर निकल जाएगा और आपको मिलेगा RCdR. So students, RCdR is what? So this is dialkyl cadmium. This is dialkyl cadmium and the byproduct is MgX and Cl 2 times. Okay. Now this dialkyl cadmium will react further with acyl chloride. Okay. So what is the next reaction students? So next is RCOCl. It will react with cadmium chloride. So Cl. Now what we will do? So we will replace this Cl. Sorry, we are writing here dialkyl cadmium, not cadmium chloride. So we will write here dialkyl cadmium RCdR. Now what to do students? So we will replace R with Cl. R यहाँ ले आएंगे, Cl इधर आ जाएगा. Now replace R here and Cl here. So you will find again cadmium chloride and the product will be ketone. And the product is R C double bond O R. ठीक है, तो ये बन जाएगा R C double bond O R. Similarly R C double bond O R and the byproduct is cadmium chloride. So you can write like this. So this is how will you find ketone from acyl chloride. So acyl chloride को रिएक्ट करना है डाइअल्काइल कैडमियम से. अब बच्चों डायरेक्ट करते तब भी बन जाता है ना. अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन डायरेक्ट RCOCl से कर दूं तब भी बन जाएगा, कीटोन तो बन ही जाएगा. ठीक है, बट प्रोडक्शन जो है वो इस रिएक्शन के थ्रू है ना, इस तरह से कराओगे रिएक्शन तो ज़्यादा ईल्ड होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है. सो और रिएक्शन भी फास्ट होता है. सो हम इस प्रोसीजर से करेंगे. एक बार वापस देखते हैं बच्चों क्या करना है आपको. सपोज हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाइक CH3MgI. ओके, नाउ CH3MgI ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपको करानी है कैडमियम क्लोराइड. कैडमियम क्लोराइड इज CdCl2. ठीक है,
अब बच्चों यहाँ पे 2 Cl है तो मैंने लिख दिया CH3MgI. नाउ MgI एंड Cl, इसको बाहर निकाल दें. सो वी विल फाइंड डाइमिथाइल कैडमियम. ओके, सो डाइमिथाइल कैडमियम and the byproduct is 2 times MgI and Cl. Now this dimethyl cadmium further react with acetyl chloride. So dimethyl cadmium वापस रिएक्ट करानी है बच्चों एसिटाइल क्लोराइड से. ठीक है, सो एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, again CH3C double bond O Cl and dimethyl cadmium. ओके, नाउ इन दोनों का रिएक्शन करा दो तो होगा क्या. तो बच्चों मिथाइल यहाँ है ना, Cl लिविंग ग्रुप है, ये रिप्लेस हो जाएगा. अगेन मिथाइल इधर ले आओ, Cl इधर ले आओ. सो यू विल फाइंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, CH3 C double bond O CH3 एंड अगेन. तो बच्चों अगेन कैडमियम क्लोराइड, वापस ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करा दो, वापस बन जाएगा और रिएक्शन होती रहेगी. ठीक है, सो वी विल फाइंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन. फर्स्ट कीटोन इज एसीटोन. क्लियर? सो दिस इज हाउ वी विल गेट acetyl chloride to acetone with the help of Grignard reagent, with the help of cadmium chloride. So this is the first preparation. Now moving to second preparation. So second method is by the action of Grignard reagent and alkyl cyanide. So इसको हम लास्ट टर्म पे डिस्कस भी कर चुके हैं. एक बार और रिएक्ट कर लेते, एग्जाम्पल से कर लेते सीधा. Grignard reagent like methyl magnesium iodide and alkyl cyanide like cyclopropyl C triple bond N. This is cyclopropyl carbonitrile. CN out of the chain, so it will be carbo means carbon, N means nitrile. Now what to do? Now C triple bond nitrogen being more electronegative, this is minus, this is plus, Mg positive, CH3 negative. Now if it approaches to carbon, then this bond will split to nitrogen. Okay, then what to do? Okay, Grignard reagent should be taken in ether. So reaction will proceed in dry ether. Now to cyclopropyl as it is, like to C triple bond N. Okay. Now students, nitrogen is negative and here positive part is Mgi. So Mgi will be connected with nitrogen. So this will be Mgi. This will be Mgi with nitrogen. और कार्बन के साथ कौन कनेक्ट होगा? So it will be CH3. Okay. So this is CH3. Now again what to do? So do hydrolysis. Now students, Mg positive, OH minus. So Mgi replace with OH. And proton will attack here on electronegative nitrogen. So C double bond NH and we have cyclopropyl and methyl. Now this is ketamine species which further gives ketone on hydrolysis. So we will say it ketamine, or you can write cyclopropyl methyl ketamine. Now what to do? Now do hydrolysis again. So ammonia is eliminated and we will find ketone like this, C double bond O. This is cyclopropyl and methyl. Okay, so what is the name? So methyl cyclopropyl ketone. Write its derived name, cyclopropyl methyl ketone. And in IUPAC you can write cyclopropyl ethanol. Out of cyclopropyl there are 2 carbon, so it will be ethanol. So cyclopropyl methyl ketone, cyclopropyl acetone or cyclopropyl ethanol. Clear? So this is its derived name. Now you can prepare Grignard reagent and cyanide reaction to ketone.
Now what is next reaction? So next is Friedel-Crafts acetylation. तो बच्चों पहले भी पढ़ रखा है Friedel-Crafts acetylation. ठीक है, what is acetylation? So acetylation means, what is the meaning of acetylation, students? तो acetylation means adding of acetyl group, adding of CH3C double bond O acetyl group is acetylation. Now what to do? So introduce this acetyl group in benzene, है ना, in presence of Lewis acid it will be Friedel-Crafts acetylation. तो बच्चों बेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से करा दो CH3COCl in presence of Lewis acid like anhydrous AlCl3. Now क्या होगा बच्चों? तो हम कहेंगे HCl will be eliminated and this acetyl group introduced in benzene. So we will find benzene C double bond O CH3 and the famous name of this compound पढ़ा था हमने, पिस्टैचियो में भी होता है, acetophenone. So this will be acetophenone. Now what is the mechanism? So mechanism is what? First acetyl chloride, acetyl chloride reacts with Lewis acid anhydrous AlCl3, then this bond splits on Cl, so Cl being minus reacts with AlCl4, so it will be AlCl4 minus and acetyl plus. So CH3 C double bond O acetyl carb cation and AlCl4 minus. This is acetyl carb cation. Now students, acetyl carb cation exists like this: CH3 C double bond O, oxygen having 2 lone pair, it will donate 1 lone pair to carbon and it will become positive. So this is again acetyl carb cation, or you can say acetylium ion. Now this is electrophile. Acetyl carb cation, this is electrophile. So on benzene always electrophile attacks. So benzene is here. हाइड्रोजन को हाईलाइट कर देते हैं. Now acetyl carb cation being electrophile attacks on benzene ring. Now this is carbon positive, it will search negative. So बच्चों देखो ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा. So this is negative, है ना, arrow is negative, tail is positive. So negative reacts with carbon. So दो बॉन्ड as it is बना दूँ, है ना, ये बॉन्ड यहाँ टूटा तो बैक साइड वाला पॉजिटिव. So this is positive. हाइड्रोजन हाईलाइट कर देते हैं. अटैक किसके थ्रू करेगा? कार्बन के थ्रू. So C double bond O CH3. Now to maintain aromaticity again we need here double bond, so this H eliminated as H plus, है ना. अगर ये बॉन्ड वापस यहाँ कार्बन पे टूट जाएगा बच्चों तो ये कार्बन नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, और H प्लस निकल जाएगा. ठीक है, तो देखो अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट गया तो कार्बन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्या हो गया? डबल बॉन्ड, और H प्लस निकल गया. तो बच्चों अब ये क्या बन गया? एसिटोफिनॉल. The structure is like this: C double bond O and CH3. This is acetophenone. Now H plus and AlCl4 further combine to give AlCl3 and HCl. So आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई ये H plus है ना, कुछ भी बचेगा तो नहीं रिएक्शन के दौरान, फाइनली सब एंड, और कैटलिस्ट एज इट इज रह जाएगा. So this will give AlCl3 and HCl. Clear? So this is through mechanism how we will find acetophenone from benzene, or in exam you can write directly. What happens when benzene reacts with acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3? So the answer will be, it gives acetophenone. So this is the third preparation, how we will get ketone. Now students, next preparation
So next is what? Next is from acetoacetic ester. This is fourth preparation. Acetoacetic ester. Now students, what is acetoacetic ester? So aceto means acetyl group, CH3 C double bond O. This is aceto. Now acetic ester means ethyl acetate. Acetic ester, acetic मतलब एसिटेट होना चाहिए, ठीक है. सो एसिटिक एसिटर क्या होता है? इथाइल एसिटेट. तो मैं CH2 लिखूंगी तो कनेक्ट हो जाएगा, CH2COO. क्लियर बच्चों? एसिटेट क्या होता है? CH3COO. ठीक है, दिस इज एसिटेट और यहाँ लिख दो C2H5. सो दिस इज इथाइल. पर मैं आगे कनेक्ट कैसे करूंगी बच्चों? तो यहाँ से एक वैलेंसी खाली कर दूं, है ना. इसको मैं एसीटो से कनेक्ट कर देती हूँ. सो द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. नाउ C2H5. दिस इज एसीटो एसिटिक एस्टर और यू कैन राइट लाइक दिस EAA. द व्हाट इज EAA? तो EAA का मतलब है इथाइल. इथाइल दिख रहा है आपको? C2H5 एसीटो इथाइल एसीटो एसीटेट, EAA और AAE यानी कि एसीटो एसिटिक एस्टर. नाउ आपको क्या करना है? तो सबसे पहले इसको एक्वस सॉल्यूशन ले हाइड्रोलाइज कर. नाउ स्टूडेंट्स, इफ विल हाइड्रोलाइज तो देखो लीविंग ग्रुप ये है एस्टर का OR. सो यहाँ आ जाएगा H, यहाँ आ जाएगा OH. ओके. सो आपको जो मिलेगा कंपाउंड दैट विल बी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH. दिस इज एसिटो एसिटिक एसिड. पहले एस्टर था, अब एसिड है, तो एसिटो एसिटिक एसिड AAA. नाउ व्हाट टू डू? नाउ हीट दिस. ठीक है. अच्छा, यहाँ एलिमिनेट क्या हुआ? तो हम कहेंगे C2H5OH एलिमिनेट हो गया. नाउ ऑन हीटिंग इट लिबरेट्स CO2. तो बच्चों अगर CO2 लिबरेट कर देगा तो रिमेनिंग स्पीशीज क्या है? सो दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. सो वी विल फाइंड एसीटोन. क्लियर? सो दिस इज एसीटो एसिटिक ester. Now student, this is not given in NCERT, so if you are preparing for JEE NEET, so you have to learn this reaction, otherwise you can leave if you are preparing for board exams. So समझ में आ गया? एसिटोएसिटिक एस्टर क्या होता है? पहले एक वो सॉल्यूशन बनाएंगे, इथेनॉल एलिमिनेट हो जाएगा, एसिटोएसिटिक एसिड बनेगा, गर्म कर दो, CO2 बाहर निकल जाएगा एंड यू विल फाइंड एसीटोन. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट मेथड? सो नेक्स्ट इज फ्रॉम एस्टर. This is fifth method. Now students, ester functional group कौन सा है? So this is COOR. आपको चाहिए ester compound तो RCOO. Clear? RCOR. Now Grignard reagent की reaction करा दो आप ester से, you will find ketone. Clear? If Grignard reagent reacts with ester, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सो स्टूडेंट्स, RMgX reacts with ester, C double bond O OR. Now C double bond O split on oxygen. This is negative, this is positive, Mg positive, R negative. This is nucleophile. It will approach to this carbon. Then this bond will split on oxygen. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स देखो RCOR और यहाँ पे R. ठीक है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये कार्बन क्या है? पॉजिटिव है. ओके. RCOOR में कार्बन तो है बच्चों प्लस, O है माइनस. ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ टूटा, इसने आके अटैक किया है, तो ये R माइनस कहाँ अप्रोच करेगा? कार्बन पे. तो कार्बन पे अटैक हो जाएगा R का, और MgX अप्रोच करेगा O पे. सो दिस इज MgX. नाउ विदाउट हाइड्रोलिसिस यू कैन OR जो है दिस इज लिविंग ग्रुप, है ना. तो बच्चों अगर ये यहाँ टूट जाएगा O नेगेटिव तो कार्बन पॉजिटिव,
ये अपना लोन पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये OR जो है MgX के साथ लिबरेट कर दूं मैं इसको डायरेक्ट. So MgX and OR eliminate and the product will be C double bond O R and R. And your answer will be keto. Clear? अब बच्चों अगर शॉर्ट में लिखना होता है ना, इस तरीके से नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखना है कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एस्टर से कराओ. सो एस्टर इज RCOOR. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX. नाउ सो स्टूडेंट्स, आपको पता है MgX लीविंग ग्रुप है, इसका लीविंग ग्रुप जो है दैट इज OR. तो आप शॉर्ट में लिख दो, आंसर विल बी RC double bond OR and by product is MgX and OR. Now students, if we have formic ester, आपके पास HCOO है ना, फॉर्मेट होता एल्काइल, फॉर्मेट होता फॉर्मिक एस्टर, और आप रिएक्ट करते इसको RMgX के साथ. अब क्या करना है बच्चों, तो देखो लीविंग ग्रुप तो ये OR, यहाँ से लीविंग ग्रुप कौन है MgX, तो MgX OR बाहर निकाल दो, तो आपके पास देखो RC double bond OH. आपका जो आंसर है दैट इज RC double bond OH. दिस इज एल्डिहाइड एंड द बाय प्रोडक्ट इज MgX and OR. क्लियर? तो बच्चों अगर एल्काइल फॉर्मेट ले लेंगे, है ना, अगर आप एल्काइल फॉर्मेट ले लेंगे तो आपका आंसर एल्डिहाइड, और सिंपल एस्टर ले लेंगे ना, एल्केनॉइड ले लेंगे तो आपका आंसर कीटो. क्लियर? और फॉर्मेट में आपका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड. सिंपल. एक एग्जांपल लेके कर लेते चलो उसको. मान लो आपको इस तरह से दिया है CH3MgI. ओके, CH3MgI की रिएक्शन आप कराएंगे इथाइल एसीटेट के साथ. ठीक है, पूरी रिएक्शन कराओ, शॉर्ट में नहीं करानी है. तो हम कहेंगे भाई ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, और अगर ये बॉन्ड ऐसे स्प्लिट कर दे तो मिथाइल अप्रोच कर जाएगा इधर, है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ टूट ही गया. अब O के साथ क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे MgI. तो डायरेक्ट लिख दूं मैं, क्या बनेगा CH3, C, O के साथ क्या है C2H5, और बच्चों ये O नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, तो O को अप्रोच करेगा MgI, कार्बन को अप्रोच करेगा CH3. नाउ सो बच्चों ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ टूट जाएगा, MgI और OC2H5 एलिमिनेट. ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ टूटा तो कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. सो दिस विल बी एसीटोन. ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपका हो गया एसीटोन. सिमिलरली अगर मैं आपसे कह दूं कि नहीं CH3MgI पिछली बार किससे रिएक्शन कराई, तो हम कहेंगे इथाइल एसीटेट. नाउ इस बार आपको रिएक्शन करानी है इथाइल फॉर्मेट, तो बच्चों HCOO दिस इज फॉर्मेट एंड इथाइल C2H5. ओके, होगा क्या, so this is positive, this is negative, it will approach on this carbon because this bond split here, so this is negative and this is positive. तो कुछ भी नहीं करना है, प्लस माइनस को कनेक्ट कर दो. तो देखो O माइनस के साथ MgI, कार्बन प्लस के ऊपर आएगा CH3, और बेसिक स्केलेटन एज इट इज रखो भाई, HCOC2H5, है ना, स्ट्रक्चर नहीं बिगाड़ना है, स्ट्रक्चर एज इट इज रखना है भाई. ये तो था ही. अब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, दो अटैकिंग स्पीशीज है देखो, तो O के साथ MgI कनेक्ट कर दिया. ठीक है, C के ऊपर कौन है CH3, कनेक्ट कर दो. ठीक है, अब क्या होगा, तो MgI और OC2H5 एलिमिनेट कर दो. MgI एंड OC2H5 एलिमिनेट हो जाएगा. अब क्या बनेगा, तो देखो CH3, C double bond OH. The product will be acetaldehyde. क्लियर? तो बच्चों अगर तुम फॉर्मेट लेते हो, दिस इज HCOO, क्या है, फॉर्मेट है ना, तो इथाइल फॉर्मेट. तो अगर आप फॉर्मेट लेते हैं तो आपका आंसर होता है एल्डिहाइड, और एल्केनॉइड लाइक इथेनॉइड एसीटेट लेते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
तो आपका आंसर हो जाएगा कीटोन। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ कीटोन प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको एस्टर से रिएक्ट करना है एक्सेप्ट फॉर्मेट। नाउ लेट्स हैव सम प्रॉब्लम्स। सो problems, these problems again for NEET JEE students, not for 12th class. So बच्चों देखो, सिंपल रिएक्शंस है। एक कंपाउंड ए स्ट्रक्चर बनाया है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन कराओ क्लोरीन से, सनलाइट की प्रेजेंस में बी बनेगा। ओके, तो पहला तो मुझे सिंपल ही लग रहा है। साइक्लोहेक्सेन अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो हम कहेंगे ये HCl एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। सो दिस इज ए क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन इज बी। नाउ डाइमिथाइल सल्फोक्साइड से इसको क्या कराया है, ऑक्सीडाइज्ड कराया है। तो बच्चों डाइमिथाइल सल्फोक्साइड क्या करेगा, ऑक्सीजन छोड़ दे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। क्लोरीन वाले कार्बन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो बनेगा, ये ध्यान रखना है आपको, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू, तो अब इसकी रिएक्शन कराओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड विद हाइड्रोलिसिस। ठीक है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो स्टूडेंट्स मैग्नीशियम पॉजिटिव, फिनाइल नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, O नेगेटिव, कार्बन इज पॉजिटिव। नाउ व्हाट टू डू, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन तो है। अच्छा, ये हमारा C है ना, साइक्लोहेक्सेन A था, ये क्लोरीन से रिएक्ट करने के बाद B एंड दिस इज C। ठीक है, D जो है वो हाइड्रोलिसिस के बाद है ना, तो ये इंटरमीडिएट है। अब देखो, तो हम कहेंगे भाई O के साथ तो आएगा MgBr और ये कार्बन प्लस है, यहाँ आ जाएगा फिनाइल। ओके, अब क्या करें, तो भाई हाइड्रोलिसिस भी तो है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो बच्चों देखो हाइड्रोलिसिस आता है हमें MgBr, OH एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ O के साथ H आ जाएगा। सो ये फिनाइल है और साइक्लोहेक्सेनॉल भी है। ठीक है, सो दिस इज D। ओके, तो बच्चों D तक तो पहुंच गए। अब आपको कहा है कि जो D बनाया है इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट कर देते हैं ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट है। ठीक है, दिया होगा एग्जाम में हीट। सो बच्चों कंसंट्रेटेड H2SO4 किसके लिए स्पेशल है, तो हम कहेंगे भाई अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है ना, हीट होगा तो प्रॉपर एलिमिनेशन। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो देखो भाई ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन आपका OH छोड़ देगा, इसका पड़ोसी क्या करेगा, H छोड़ देगा, है ना, तो वाटर एलिमिनेट होते अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा। याद करो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पड़ा है, तो यहां आ जाएगा फिनाइल एंड दिस इज डबल बॉन्ड। ठीक है, तो D के बाद ये क्या हो गया, तो ये हो गया E। ओके, अब क्या करें, E तक तो पहुंच गए। तो बच्चों अब है B2H6 हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, और फॉलोड बाय एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस OH माइनस। तो बच्चों एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन करना था। ठीक है, तो एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो मैकेनिज्म तो मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग ही था, लेकिन जो प्रोडक्ट था दैट इज एंटी मार्कोनिकॉव। तो अगर मैं इसका एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनाऊं, है ना, तो क्या बनेगा, तो बच्चों हाइड्रोबोरेशन बनेगा तो अल्कोहल। अब आप सोचो एंटी मार्कोनिकॉव हाइड्रेशन है तो H प्लस और OH माइनस। अब आपको क्या करना है, देखो चेक करो क्या करोगे, डबल बॉन्डेड कार्बन जो फिनाइल से कनेक्टेड है उसकी तो 4 वैलेंसी कंप्लीट है ना, और जो फिनाइल के जस्ट पास वाला कार्बन है उसके पास क्या है, H है। ठीक है, तो बच्चों हाइड्रोबोरेशन एंटी मार्कोनिकॉव चलेगा, तो वैसे तो क्या था माइनस वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम हो, यहां आना चाहिए था, लेकिन दिस इज एंटी मार्कोनिकॉव तो OH उधर आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई OH तो इधर आ जाएगा। सो दिस इज क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा F। नाउ तो बच्चों अब लिखा है PCC, तो याद करो PCC क्या था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ आपके पास ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये कीटोन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया 2 फिनाइल साइक्लोहेक्सेनॉन और DFEF आ गया ना, ये हो जाएगा G। ठीक है, तो ये पूरा इक्वेशन और ये पूरा सोल्यूशन सिंपल है बच्चों, है ना। देखो ये तो आपने पढ़ रखा है अभी क्लोरीन से, DMSO हेलो एल्केन को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोनाइल ग्रुप में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है आपको अल्कोहल, कंसंट्रेटेड H2SO फॉर हीट, मतलब कंप्लीट एलिमिनेट करना है ना। आपको लगेगा ईथर क्यों नहीं बनाया, तो बच्चों ईथर तो बीच में स्टॉप होता है, जब भी आपको प्रॉपर नहीं दिया होता तो आप रिएक्शन को लास्ट तक ले जाओ, तो लास्ट तक ले जाओगे तो एल्कीन, फिर एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन, तो हाइड्रोबोरेशन करके थोड़ा ना देखना है, आपको पता होना चाहिए भाई हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन ही है, बट एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है तो एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बना दो। PCC क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीडाइज करता है, तो ये आपका फाइनल आंसर। सो दिस इज G। क्लियर, एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, एक कंपाउंड है फिनाइल and this is carbon, methyl and methyl. Okay, now twice molecules of NBS in presence of sunlight. Now students, NBS जो होता है this is N-bromosuccinamide. N-bromosuccinamide। अब आपको तो सिर्फ ये देखना है ये काम क्या करता है, तो बच्चों ये स्पेसिफिक होता है किसके लिए, सो दिस इज स्पेसिफिक फॉर बेंजाइलिक एंड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है बेंजाइलिक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, तो देखो कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन, तो हम कहेंगे बेंजाइलिक तो है। अब 2 NBS दिया है बच्चों, यानी दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करो, 2 मॉलिक्यूल दिए ना 2 मोल से, तो दोनों को क्या करो, सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो क्या बनेगा, फिनाइल, यहाँ पे आपके पास इस कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल, सो दिस इज Br एंड अगेन दिस इज Br। ठीक है, अब क्या करें, तो इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा दो। ओके, सो एक्वस KOH 2 बार ले लो। ठीक है, तो हम कहेंगे KBr एलिमिनेट हो जाएगा and this is phenyl and OH, this carbon have 2 methyl group। अब बच्चों एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं, है ना, तो हम कहेंगे यहाँ से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देंगे हम C डबल बॉन्ड O में। ठीक है, फिनाइल, ठीक है, एक्वस KOH एंड हीट भी कर दूँ ताकि आपका प्रोडक्ट सही बन जाएगा। सो C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एंड दिस इज मिथाइल एंड मिथाइल। क्लियर, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो आपके पास A क्या हुआ बच्चों, तो A तो हो गया ये, है ना। अब आपको ऑप्शन में चेक करना है B आपके पास ये है या ये, तो बच्चों अगर हीट करेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, हीट नहीं करेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, बट ये अनस्टेबल है तो आगे जाना पड़ेगा। क्लियर, तो बच्चों ये हो गया हमारा आज का कंप्लीट सेशन, जिसमें हमने पढ़ लिया प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कीटोन, ओनली कीटोन्स, सिर्फ कीटोन कैसे कैसे बनेगा और कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शंस पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। टिल देन कीप स्टडिंग एंड टेक केयर।